শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 29 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী चैतन्य चरितामृत आदि 14.29 ऑनवर्ड्स मैं 24 नंबर से पढ़ रहा हूँ। एक दिन शची खोई संदेशो आनिया बाटा भरी दिया बইল, খাও তো বসিয়া। বাটা ভরি দেওয়া না, বাটিতে ভরে দিয়েছে। এত বলি গেলা শচী গৃহে কর্ম করতে, লুকাইয়া লাগিল শিশু মৃত্তিকা খাইতে। ठीक है महामंत्री माता जी, समझ में आया? देखी शची दाई आइलो करी हाय हाय। ठीक है, सुचारू गोपी माता जी आपको ऐसा करना पड़ेगा, हाय हाय। माटी कारी लइया कहे माटी केने खाय, কান্দিয়া বলেন শিশু কেনে করো রোষ, তুমি মাইতে মাটি খাইতে দিলে মোরো কি বা দোষ। ওই সন্দেশ অন্ন যতে মাটির বিকার, एहो माटी सेहो माटी की भेद विचार। इसमें क्या अंतर है? वो भी संदेश भी माटी से ही बना हुआ है, पंचतत्व से ही बना हुआ है। दोनों में क्या अंतर है? 29 नंबर श्लोक। यस, सची सत्यनारायण श्रीवास प्रभु। माटी देह माटी भक्ष देखो বিচারি। মাটি দেহ মাটি ভক্ষ দেখো বিচারি, অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি। অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি। এই দেহ হচ্ছে মাটির বিকার এবং খাদ্যদ্রব্যও হচ্ছে মাটির বিকার। এই সম্বন্ধে দয়া করে একটু বিচার করে দেখো। মাতাকে বললেন, কোন রকম বিচার না করেই তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ, সুতরাং আমি আর কি বলিতে পারি। তাহলে তাৎপর্য এটি হচ্ছে মায়াবাদীদের দর্শন, যাতে সবকিছুকেই এক বলে মনে করা হয়। দেহের প্রয়োজনগুলি যথা আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন পারমার্থিক জীবনে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন তখন আর দেহের প্রয়োজনগুলি থাকে না, আর দেহ কেন্দ্রিক সে সমস্ত কার্যকলাপ তাতে পারমার্থিক বিচার থাকে না। পক্ষান্তরে যত বেশি করে খাওয়া হয়, ঘুমানো হয়, মৈথুন করা হয় এবং আত্মরক্ষা করা হয়, ততই বেশি করে জড়জাগতিক কার্যকলাপে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদীরা ভগবত ভক্তিকে দেহের কার্যকলাপ বলে মনে করে। তারা ভাগবত গীতার সরল বিশ্লেষণটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। মান্তজো বিবিচারেণে ভক্তি যোগেন সেবতে সগুণান সমতীতে তান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। কেউ যখন নিষ্কাম ভাবে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন এবং তখন তার সমস্ত কার্যকলাপই চিন্ময় বা অপ্রাকৃত। এখানে ব্রহ্মভূয়ায় বলতে ব্রহ্মভূত চিন্ময় কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে। মায়াবাদীরা যদিও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়, তবুও তাদের কার্যকলাপ ব্রহ্মভূত নয়। তাদের মতে ব্রহ্মভূত কার্যকলাপ হচ্ছে বেদান্ত পাঠ ও সাংখ্য দর্শনের আলোচনা, কিন্তু তাদের সেই বিষয়ের বিশেষ বিশ্লেষণগুলি হচ্ছে নিরস জল্পনা কল্পনা মাত্র। নিরসের পর কমা হওয়া উচিত, বা নিরস জল্পনা কল্পনা মাত্র, ঠিক আছে। কেবল বেদান্ত অথবা সাংখ্য দর্শন আলোচনা করে তারা দীর্ঘকাল সেই স্তরে থাকতে পারে না, কেননা তাদের চিন্ময় বৈচিত্র্যতা নেই, वेरिकेटेड नहीं है, बोरिंग हो जाएगा, बोरियसनेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा गुजराती में बोलते हैं नानू नानू। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मायावादी दर्शन के बारे में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দ ভোগ করা। हरि बोल। বৈচিত্র্য, वेरिकेटेड। हम लोग को भी वैरायटीज चाहिए। हम लोग इस्कॉन में देखिए कितना इस्कॉन है, सो मच टू ऑफर्स, कितना वैरायटी है। कीर्तन है, क्लासेस है, भक्ति शास्त्रीय भक्ति वैभव है, फेस्टिवल्स आ रहा है, अभी नरसिंह चतुर्थी ड्रामा है और प्रसादम, क्या क्या वैरायटी, माय गुडनेस। तो कितना कुछ वैरायटीज है।
लेकिन सोचिए अगर हम लोग आज मायावाद क्लास करते मॉर्निंग में, सिर्फ वेदांतो पाठ, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ वेदांतो पाठ। वही भगवान का लीला नहीं है, सब वेदांतो पाठ, सब श्लोक का पाठ होता, सब डेली हम लोग श्लोक पढ़ते, बस हो गया वेदांतो पाठ, बैठे और कुछ नहीं। किनको किनको लगता है हम लोग को वही करना चाहिए? चलिए एक दिन हाथ उठाया, जिनको लगता है कि हम लोग को वेदांतो पाठ करना चाहिए डेली। ओके, হরে কৃষ্ণ বাবু, হ্যাঁ বলুন। বেদান্ত পাঠের কথা বলছি যে আহার নিদ্রা ভয় মতন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তো আহার আহার সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটি, একটু দেখুন কি লেখা আছে। যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে ভগবত ভক্তি স্তরে উন্নীত হয়, তখন তার জন্য এগুলো নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায়। যেমন শিলা প্রভুপাদ, আমরা কালকে আমি সকাল দুপুরবেলা পড়ছিলাম শিলা প্রভুপাদের, উনি চৈতন্য চরিতামৃত 18 মাসে বঙ্গানুবাদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, 18 মাসে, 1972 থেকে 1973, 18 মাসে। রাত 1টায় উঠতেন, 3 ঘন্টা কন্টিনিউয়াস চৈতন্য চরিতামৃত লিখতেন। আস্তে আস্তে নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায় আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন। শিলা প্রভুপাদ এই 11টার সময় মিটিং করে 11টা থেকে 12টা, 12:30, 1.5 ঘন্টা শুতেন, বাস ওই যথেষ্ট। তো আস্তে আস্তে আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন সত্যি না নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায় না ব্যক্তির জন্য? হয় না? Yes. আমরা দেখি আমাদের স্বর গোস্বামীরা ওনারা খাওয়া দাওয়া করবে, ওই জন্য রান্না করতে হবে, রান্না করতে গেলে বাজার করতে হবে, বাসন মাজতে হবে, ডাইরেক্ট মাদুরি করি করতেন। সারাদিন মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতেন, আর শরীরকে একটু পেট্রোল দেওয়ার জন্য একটু মাদুরি করে নিতেন, ডাইরেক্ট ব্রজবাসীদের থেকে রুটি নুন নিয়ে, বাস ওটা যথেষ্ট। এভাবে শরীরের প্রয়োজনীয়তা খুব মিনিমাইজ করে দিয়েছে। আর আমাদের অবস্থা দেখুন, সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার অবস্থা, সারাক্ষণ ক্লাসেও ঘুমাই, ক্লাসের পরেও ঘুমাই, সারাক্ষণ সুযোগ পেলেই সাথে সাথে একটু ঘুমিয়ে যায়, যত পারে ঘুমাই, ঘুম থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করে না, স্পেশালি শীতকালে। এইভাবে সময় অপচয় করে। আর দেখুন মহাপ্রভু আর ওনাদের পার্শ্বদ দেখুন, ওনারা সারাদিন শিবা সঙ্গনে কীর্তন করতেন। আর একদিন মহাপ্রভু বললেন, আজকে থেকে আমরা সারাদিন না, সারা রাত ঘুমিয়ে থাকি না, সারা রাতও আমরা অপচয় করবো না, সারাদিন আর সারা রাত আমরা কীর্তন করবো, হরি বল। এইভাবে মহাপ্রভু শরীরের যে প্রয়োজনীয়তা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিলেন। বঙ্কিম প্রভু বলুন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, রাধে রাধে, দণ্ডবত প্রণাম। সনাতন গোস্বামী 30 কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা করতেন, 21 কিলোমিটার পরিক্রমা করে ফেরার সময় বোঝের বাড়িতে 5 ঘরে মানে আটা ভিক্ষা করে, সেই আটা জল দিয়ে মিশিয়ে নুন ছাড়া হাতে রুটি বানিয়ে সেকে খেতেন। এই হচ্ছে মানে যারা ভক্ত, যারা মানে পরিকর, তাদের খাদ্য। হরে কৃষ্ণ বাবু, আপনি তাই করেন নাকি মর্নিং ওয়াক করে গিয়ে? তাই তবু শোনা গেল না প্রভু, শোনা গেল না? না, শুনতে পেয়েছি, ভালো করে শুনতে পেয়েছি। আমি বলছি আপনি তাই করেন কিনা এটা জিজ্ঞেস করছি। মর্নিং ওয়াক করার পর 21 কিলোমিটার হেঁটে তারপর আটা জল দিয়ে গুলিয়ে, আপনিও শুনেছি এরকম করেন নাকি? প্রভু ওরকমই বলে রাখি। ওকে, কোথায় ছিলাম আমরা? কেবলমাত্র বেদান্ত অথবা সাংখ্য দর্শন আলোচনা করে তারা দীর্ঘকাল সেই স্তরে থাকতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দ ভোগ করা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উইথ ভ্যারিগেটেডনেস, ভ্যারাইটিস। जीवन स्वाभाविक भावे आनंद चाहे, लेकिन ये मायावाद लोग क्या वैरायटी रहेगा? ब्रह्म ज्योति में जाकर हजार साल उधर ही बैठे रहते हैं, कोई वैरायटी नहीं है, कोई सिवाय नहीं उधर। সেই কথা বেদান্ত সূত্রে বলা হয়েছে, ভাগবত ভক্তি সমস্ত কার্যকলাপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময়। সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে সমস্ত রকমের ভগবত ভক্তি অত্যন্ত সহজ সাধ্য, সুসুখম কর্তুমাপয়ম, এবং তা নিত্য ও চিন্ময়, অব্যয়। যেহেতু মায়াবাদীরা সেই কথা বুঝতে পারে না,
তাই তারা মনে করে যে ভগবত ভক্তদের কার্যকলাপ শ্রবণং কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম প্রভৃতি জড় এবং সেহেতু তারা মায়া। তারা মনে করে যে এই জগতে কৃষ্ণের অবতরণ এবং তার লীলাবিলাসও মায়া। সুতরাং যেহেতু তারা সবকিছুকে মায়া বলে মনে করে, তাই তাদেরকে মাयावादी বলা হয়। हरि बोल। वो लोग सोचता है कि भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं तो भगवान माया में फंस जाते हैं। প্রকৃতপক্ষে সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্পাদিত সমস্ত কার্যকলাপই চিন্ময়। কিন্তু যে মানুষ গুরুর নির্দেশ অবজ্ঞা করে নিজের খেয়াল খুশি মতো কার্য করে এবং মনে করে যে তার অর্থহীন কার্যকলাপগুলি পারমার্থিক, সেটি হচ্ছে মায়া। সদ্গুরুর কৃপার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে হয়, তাই সর্বপ্রথমে গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করতে হয় এবং তিনি প্রসন্ন হলে পরমেশ্বর ভগবানও প্রসন্ন হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। কিন্তু গুরুদেব যদি আমাদের ক্রিয়াকলাপে অপ্রসন্ন হন, তাহলে সেই সমস্ত ক্রিয়া চিন্ময় নয়। চুল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন, প্রসাদ ভগবত প্রসাদ যস্য প্রসাদন্নান গতি কুতোতি আইনস্তুবন্তস্য যশস্ত্রী সন্দম বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দম। যে সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করে তা অবশ্যই চিন্ময়, এবং বুঝতে হবে যে সেই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে। পরম গুরুদেব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে মায়াবাদ দর্শনের কথা বলেছিলেন। দেহ মাটি এবং খাদ্যদ্রব্য মাটি, এই কথা বলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে সবকিছুই মায়া। এটাই হচ্ছে মায়াবাদ দর্শন। মায়াবাদীদের দর্শন ভ্রান্ত, কেননা তাদের বিচারে তাদের অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর সবই মায়া। সবকিছুই মায়া বলে মনে করে মায়াবাদীরা ভগবানের সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং তার ফলে তাদের সর্বনাশ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ। কেউ যদি মায়াবাদ দর্শন গ্রহণ করে, তাহলে তার পারমার্থিক প্রগতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। 33 নম্বর শ্লোক। অন্তরে বিস্মৃত সচি বলিল তাহারে, অন্তরে বিস্মৃত সচি বলিল তাহারে, মাটি খাইতে জ্ঞান যোগকে শিখালো তোরে। মাটি খাইতে জ্ঞান যোগ কে শিখালো তারে। यस, सुचारी गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग में नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने परम गुरु के रूप में अपनी माता को मायावाद का दर्शन का उपदेश दिया, ये थोड़ा सा क्या है? तो मायावाद लोग बोलते हैं सब माया है, तो इसीलिए सब ये माटी जो है वही हम खा रहे हैं, क्योंकि ये भी पंचभूत से बनाया गया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अभी पूरा लीला सुनने से पता चलेगा कि मायावाद को खंडन करने के लिए, मायावाद को गलत दिखाने के लिए महाप्रभु ने ये लीला प्रदर्शन किया, प्रमोट करने के लिए नहीं, गलत दिखाने के लिए। क्योंकि मायावाद में कोई वैचित्रता नहीं है, कोई वेरिगेटेडनेस नहीं है। तो जीवन एकदम, बोला ना, देखा ना आपने, प्रभुपाद बता रहे उन लोग जीवन में क्या करते हैं, वेदांत पाठ करते हैं और कुछ नहीं। वेदांत पाठ करता है और वो सब चीज को माया मानते हैं। सब चीज को माया मानते हैं। পরম গুরুদেব কেন বলেছে? কোথায় পরম গুরুদেব? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে পরম মানে দেখুন, বন্দে জগৎ গুরু চরণারবিন্দ। তো বন্দে কৃষ্ণ জগৎ গুরু আমরা বলি না, বন্দে কৃষ্ণ জগৎ গুরু একটা বলি না, কারণ কি ভগবান হচ্ছেন সমস্ত তত্ত্বের স্রোত। ওই হিসাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য গুরুদেব, আর চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, সত্তত্বের স্রোত। এখানে কি ওনার মায়ের গুরুদেব হিসেবে বলছে? না, পরম গুরুদেব, আরাধ্য গুরুদেব আমাদের चैतन्य महाप्रभु, कारण कि उन्हार থেকে स्रोत भगवान जगत क्या वंदे कृष्ण जगत गुरु ऐसे बोलते ना हम लोग, परम गुरुदेव। আর এখানে গুরুদেব জিনিসটা বলার মেন হচ্ছে উদ্দেশ্য হচ্ছে কারণ কি উনি শিক্ষা প্রদান করছেন। সমস্ত শিক্ষা বলতে গেলে তো ভগবান থেকেই আসছে যত শিক্ষা। यस, कालिंदी सुविलास माता जी। प्रभु ये आदि गुरु कहे जाएंगे ना?
आदि गुरु यूजुअली बलराम जी को बोला जाता है। हाँ, कृष्ण को भी बोल सकते हैं, क्योंकि समस्त যতই তত্ত্ব তো ওনার থেকেই উৎস, वही तो सोर्स है। ओके, ওই জন্য प्रभु দেখুন यहाँ पे एज कितना होगा प्रभु का, महाप्रभु का यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं जो? ये कितना, अभी तो शायद 7-8 साल होगा, यहाँ शायद मेंशन नहीं है, उतना ही होगा। मिट्टी के ऊपर बैठ के नहीं, वो माटी हरी लीला है, वो वाला अलग लीला है, ये अलग लीला है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। एक तो माटी हरी के ऊपर झूठा बर्तन के ऊपर बैठा हुआ था ना, वो एक अलग लीला है। यहाँ क्या कर रहा है, माता ने संदेश खाने को दिया और खोई खाने को दिया, महाप्रभु वो नहीं खाकर मिट्टी खा रहे हैं। तो मायावाद लोग जो करता है उन लोग को समझाने के लिए ये गलत चीज प्रदर्शन करते हैं, समझाने के लिए, तत्व समझाने के लिए। মা ও ছেলের মধ্যে যখন এই দার্শনিক আলোচনা হচ্ছিল তখন ছেলে বলেছিলেন নির্বিশেষবাদীরা বলে যে সবকিছুই এক, কিন্তু মা উত্তর দিয়েছিলেন সবকিছুই যদি এক হয় তাহলে মানুষ মাটি না খেয়ে মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য খায় কেন? तो देखिए, नेगेटिव चीज करके सिखाना, कभी कभी नेगेटिव चीज करके लोगों को सिखाना पड़ता है। मैं और क्या उदाहरण दूं, जैसे जैसे सोचिए, निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं कि भगवान का आकार नहीं होता है, बोलता है ना निर्विशेषवादी लोग, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का आकार है या नहीं है? हम लोग का तो आकार है, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं है, और भगवान हमारा पिता है, सबका पिता है, तो पिता का कोई आकार नहीं और पुत्र का आकार है, ये निर्विशेष लोग मानता है ना। तो फिर निर्विशेषवादी को बोला, सुनिए इधर आओ, तुम्हारा पिता का तो कोई आकार है ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, नेगेटिव बोल के सिखाना, पॉजिटिव चीज सिखाना। तुम्हारा पिता का तो कोई आकार ही नहीं है। नहीं, ये मेरा पिता है। अरे उनका तो आकार है, दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा पिता नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रहे हो, ये मेरा पिता है। नहीं, इनका तो आकार है, तुम तो निर्विशेषवादी। तुम तो बोलते हो कि भगवान का कोई आकार नहीं है, तो जिनका कोई आकार नहीं है उनका बच्चे लोग का कैसे आकार होगा? तो कुछ नेगेटिव चीज बोलकर कोई तत्व को समझाना। वैसे महाप्रभु क्या कर रहा है, माटी खा रहा है। माटी क्यों खा रहा है भाई? तुमको संदेश दिया, खोई दिया। बोले अरे ये तो एक ही चीज, ये तो माटी से ही आया है, ये संदेश, ये खोई, ये तो सब माटी से पंचभूत से उत्पन्न हुआ है। तो माटी खाना और संदेश खाना दोनों तो एक ही है। तो दूसरा माँ होता तो क्या, एक झापर मारता है, एक ही है दोनों, एक नहीं है। संदेश खाओ, सब चीज एक नहीं है। तो मायावाद लोग बोलता सब चीज एक है, सब भगवान है, सब भगवान से उत्साह है, ब्रह्मसत्व जगत मिथ्या। तो ये नेगेटिव चीज करके कोई तत्व को समझाना, वही ये लीला हो रहा है। ओके, और ये लीला से वो जो झूठा बर्तनों के ऊपर महाप्रभु बैठे हुए हैं, वो दोनों लीला को मिक्स मत कीजिएगा। वहां अलग तत्व है, वो जब आएगा तो हम लोग सुनेंगे, ये अलग तत्व है। ओके, यहाँ बुलंद बोल प्रभु। हरे कृष्ण हरि बोल प्रणाम। ये কপিল দেব তো মাতা দেবাদিকে যে ন্যায় দর্শন করেছিল সেটা তো গুরু হিসাবে তো করেছিল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ওকে, মা ও ছেলের মধ্যে যখন এই দার্শনিক আলোচনা হচ্ছিল তখন ছেলে বলেছিলেন নির্বিশেষবাদীরা বলে যে সবকিছুই এক, কিন্তু মা উত্তর দিচ্ছিলেন সবকিছু যদি এক হয় তাহলে মানুষ মাটি না খেয়ে মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য খায় কেন? सबकिছু এক নয়, ऑल आर नॉट वन। और एक भी क्या बोलता है निर्विशेषवादी मायावादी लोग, क्या बोलता है, जतो मत ततो पद बोलता है ना। कोई भी किसी को भी आप आराधना कर सकते हैं, सब एक ही है, सब भगवान है। आप कोई भी देवी देवता की भी आराधना कर सकते हो, ऑल आर फाइन। आप देखिएगा ये सब मायावाद का जब संस्था का गेट में देखिएगा, हर एक सिंबल है, देखा आपने, मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, हर एक सिंबल है, हर एक धर्म का सिंबल उन लोग का गेट में रहेगा। आई डोंट नो आप लोग ये ऑब्जर्व किया या नहीं। क्यों? इसका मतलब ऑल फिलोसफीज आर ओके। अरे ऑल फिलोसफीज ओके कैसे हो सकता है? नहीं, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है, सबको आराधना करने से एक ही जगह पहुंचेंगे। अच्छा, तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे। अच्छा, कोई भी टिकट खरीद लेंगे हम बॉम्बे, हम सोचे हमको बॉम्बे जाना है, हम लोग क्या
काउंटर पे जाके बोलते हैं अरे सर कोई भी एक टिकट दे दीजिए बस। अरे कोई भी टिकट लेने से बॉम्बे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, आपको बॉम्बे का टिकट खरीदना पड़ेगा बॉम्बे पहुंचने के लिए, है ना। वैसे ही कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता को पूछने से क्या हम लोग भगवान के धाम पहुंच जाएंगे? कभी नहीं। तो ये सब से ये सब है मायावाद शिक्षा। এই রে আজকে 4টা বাজে। হ্যাঁ বলুন। ये जब ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या ये तो 4 भाग दर्शনের নীতি আর 4 ভাগ দর্শনের প্রণেতা হচ্ছে শঙ্করাচার্য। हरे कृष्ण भोग। वेरी गुड। यस सत्यभामा माता जी। उनकी माता बोल रही है कि लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न के बदले मिट्टी ही क्यों नहीं खा लेते। हाँ यस, सोचिए हम लोग एप्पल खाता है, एप्पल पेड़ से उगता है। हाँ, तो एप्पल पेड़ खाता है क्या हम लोग? एप्पल का ट्री खाता है? नहीं खाता है, लेकिन ट्री का फल खाता है। हाँ, तो वैसे ही कुछ ठीक है, जो चीज से उगता है तो वही खा लो, फिर मिट्टी से सब आ रहा है तो मिट्टी खाना शुरू कर दो। ऐसे करके सची माता परिहास कर रहा है। माटी बिकार अन्न खाइले देह पुष्टि হয়, মাটি বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়, মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়। মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়। ये कौन बोल रहा है? ये कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। हाँ, कविराज गोस्वामी बोल रहे थे, कोई इन्वर्टेड कमाज नहीं है। शिशु दार्शनिक मायावाद সম্বন্ধে ধারণার কথা শুনে সচি মাতা उत्तर दिले। अच्छा सॉरी सची माता उत्तर दिया। ये एक्चुअली इन्वर्टेड कमाज में होना चाहिए था। আছে প্রভুজি, ইনভার্টেড কমা মাটি থেকে আছে ইনভার্টেড। আমার বইয়ে ইনভার্টেড কমাজ নেই। মাটি বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়, এটা ইনভার্টেড কমাজ আছে আপনার বইয়ে? না, তা ওই যে যেখানে শ্লোকার্থ লিখেছে ওখানে সেকেন্ড লাইন থেকে মাটির বিকার অন্ন ওইখান থেকে। এটা শ্লোকার্থে, কিন্তু শ্লোকে তো হওয়া উচিত ছিল না? শ্লোকেও দেয় কেন যায়নি? 30 নম্বর শ্লোকে দেখতে পাচ্ছেন না ইনভার্টেড কমাজ আছে কিনা সেকেন্ড লাইনে? হ্যাঁ, ওই এখানেও তো সেকেন্ড লাইন থেকে আছে শ্লোকার্থে অর্থে 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 থাকা আর শ্লোকে থাকার মতো তফাৎ না। শ্লোক মানে আপনি কোট করছেন কাউকে। এনিওয়েজ, মাটির বিকার অন্ন খেয়ে আমাদের দেহের পুষ্টি হয়, কিন্তু মাটি খেলে দেহ পুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে শুধু রোগগ্রস্তই হয় এবং তার ফলে দেহ ক্ষয় হয়ে যায়। तो कौन एक्चुअली शिक्षा दे रहे हैं? एक्चुअली शिक्षा दे रहे हैं सची माता। और महाप्रभु नेगेटिव प्रीचिंग करके माँ का मुंह से सही तत्व प्रचार कर रहा है। किसके लिए? हम लोग के कल्याण के लिए। क्लियर है? जिस तरह आप देखे होंगे भगवान रामानंद राय से मुंह से तत्व निकालते हैं, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के मुंह से भगवान के पवित्र नाम का महिमा श्रवण करवाते हैं हम लोगों को। तो उसी तरह मायावाद दर्शन को खंडन करके सही दर्शन, वैष्णव दर्शन, ये महाप्रभु अपने माँ का मुंह से हम लोग को शिक्षा दिया जा रहा है। माटिर विकार घटे पानी भरी आनी, মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি আনি, মাটি পিণ্ডে ধরি যাবে শোষি যায় পানি। মাটি পিণ্ডে ধরি যাবে শোষি যায় পানি। देखिए सची माता और एक उदाहरण दे रहा है तत्व को सही बताने के लिए, वैष्णव तत्व को। माटिर विकार घटे আমরা জল ভরে আনি। माटिर विकार घटे माने मिट्टी से घट बनता है ना, जहां से हम लोग ले आते हैं हरी माटी का हरी। কিন্তু মাটির পিণ্ডে যদি জল ঢালা হয় তাহলে তা জল শুষে নেয় এবং তার ফলে আমাদের পরিশ্রम व्यर्थ হয়। माटिर पिंडे तो अगर मिट्टी में आप पानी डालिएगा तो मिट्टी तो पूरा सूख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, फिर पानी दिया फिर लाकर क्या फायदा हुआ? तो तात्पर्य শুনুন। সচী মাতা স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও তার এই সরল দর্শন মায়াবাদীদের সমস্ত অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে তাদের পরাস্ত করছে। মায়াবাদ দর্শনের ত্রুটি হচ্ছে যে তারা বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একান্ত দরকার।
छोची माता वैचित्र, तो हम लोग वैचित्र को स्वीकार करते हैं। हम लोग हर एक को एक चीज नहीं मानते हैं, नहीं तो हम लोग फिर मिट्टी खाने लगते हैं संदेश नहीं खा के। छोची माता দৃষ্টান্ত দিলেন যে যদিও মাটির ঘট আর মাটির পিণ্ড একই বস্তু, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুসারে ঘটটি প্রয়োজনীয় এবং মাটির পিণ্ড নিষ্প্রয়োজনীয়। অনেক সময় বৈজ্ঞানিকেরা তর্ক করে যে জড় ও চেতন এক এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। বাস্তবিক পক্ষে উচ্চতর বিচারে জড় ও চেতনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে আমরা বুঝতে হবে যে জড় পদার্থ নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু চেতন উৎকৃষ্ট হওয়ার ফলে आनंदमय। तो मायावाद लोग बोलता है जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं है, सब एक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। माने ये जड़ है ना, ये रिमोट, और हम लोग चेतन है ना, लेकिन मायावाद लोग नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, सब एक है, सब एक, जड़ और चेतन सब एक है। हाँ, जड़ और चेतन एक्चुअली एक है, वो है बहुत उच्च स्तर में, माने जो भगवत धाम में हर एक चीज चेतनी है ना, हर एक चीज चेतनी है ना जो भगवत धाम में। लेकिन इस जड़ जगत में व्यवहारिक अनुसार ये इसको स्थावर बोला जाएगा। ये रिमोट अगर हम इधर रख देंगे तो ये यही रहेगा ना, स्थावर। और हम लोग क्या है, जंगम है, चलते फिरते हैं। तो जड़ और चेतन एक नहीं है, चिन्मय स्तर पे एक है। जैसे हम लोग को मालूम है चिन्मय स्तर पे पहाड़ भी स्थावर या जंगम है, जंगम। यस, पहाड़ जंगम है, पहाड़ एक व्यक्ति है। और हम लोग को ये भी मालूम है कि आदिकाल में पहाड़ का पंख भी होता था, मालूम है ना, आया था ना शास्त्र में, पहाड़ उड़ सकते थे, पहाड़ का पंख होता था, गोवर्धन उड़ के ही आए। हाँ। तो ये सब माने तो एकदम पूरा विशुद्ध चिन्मय स्तर पे ये सब हम लोग को मालूम। लेकिन मायावाद लोग बोलते नहीं, जड़ और चेतन सब एक ही है। এই সম্পর্কে শ্রীমদ ভাগবতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে মাটি ও অগ্নি প্রকৃতপক্ষে এক এবং অভিন্ন। মাটি থেকে গাছ জন্মায় এবং সেই গাছের কাঠ থেকে আগুন ও ধোঁয়া পাওয়া যায়, তবুও আগুন থেকে তাপ পাওয়া যায়, মাটি কাঠ অথবা ধোঁয়া থেকে নয়। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চরম উপলব্ধির জন্য আমরা চেতন আত্মার সম্পর্ক খুঁজি, শুষ্ক কাঠ অথবা জড় মৃত্তিকা নয়। एक बार देखिए तात्पर्य का कुछ चीज समझ नहीं आ रहा तो पूछिए, थोड़ा फिलोसॉफिकल है। एक बात बताइए, लकड़ी में आग है, हाँ या ना? है। अच्छा, और एक बात बताइए, मिट्टी में आग है? नहीं है। नहीं नहीं नहीं। लेकिन मिट्टी से जब पेड़ पौधा उगता है तो पेड़ पौधा का जो लकड़ी है उसमें आग आ जाता है। वैसे ही अच्छा, मिट्टी देने संदेश में मिट्टी है, हाँ या ना? हाँ, संदेश में पंचभूत से बना हुआ मिट्टी है। संदेश जो हम लोग खाते हैं संदेश मिट्टी है, हाँ है, पंचभूत से बनाया था। तो फिर मिट्टी खाते क्यों नहीं? नहीं, मिट्टी नहीं खा सकते। मिट्टी का जब विकार होगा, मिट्टी से उगा हुआ ये गाय का शरीर पंचभूत से बना हुआ है ना, वो जब दूध देगा, वो दूध से जब हम लोग संदेश बनाएगा, वो संदेश को हम लोग खा सकते हैं। सो वेल परिवर्तन होने के बाद उस चीज को हम लोग खा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज को मिट्टी खाना वो तो मूर्खता होगा। सो हर एक वस्तु चेतन और अचेतन को एक बोलना मायावाद फिलोसफी एकदम बोगस है। ये महाप्रभु अपने माँ के थ्रू से ये तत्व हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। यस, बोलो। ও তাহলে এই যে আমাদের তাহলে উচ্চতর বিচারে জড় ও চেতনের যে কোনো পার্থক্য নেই, ঠিক এই জায়গাটাই বলতে চাইছে যে না, ওই জায়গাটা প্রভুপাদ না 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 ওই জায়গাটা বলতে চাইছে না, ওই জায়গাটা বলতে চাইছে না। ওইটা এই জায়গাটা দেখুন, নিম্ন স্তরে জড় ও চেতনের কোনো পার্থক্য নেই মায়াবাদীরা বলে, ঠিক না? ওইটাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করছে। আর যেটা আপনি বললেন উচ্চ স্তরে চেতন ও অচেতনের কোনো পার্থক্য নেই, সেটা প্রভুপাদ তাৎপর্যে একটা সেন্টেন্স এক্সট্রা বলে দিয়েছে। আমি বলছি কোন সেন্টেন্স, দেখুন,
বাস্তবিক পক্ষে দেখুন দেখুন ওখানে লেখা আছে বাস্তবিক পক্ষে মাঝখানে একদম তাৎপর্যের মাঝখানে অনেক সময় বৈজ্ঞানিকেরা তর্ক করে যে জড় ও চেতন এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বাস্তবিক পক্ষে উচ্চতর বিচারে জড় ও চেতনের মধ্যে সত্যিই কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে বুঝতে হবে যে জড় পদার্থ নিষ্কৃষ্ট হওয়ার ফলে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি। মানে বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মানে প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখি দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, কিন্তু একদম উচ্চস্তরীয় মানে একদম সেখানের মধ্যে যেমন আমি পাহাড়ের উদাহরণ দিলাম। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये वाला सेंटेंस पढ़िए कोई, वास्तव बीच में देखिए लिखा होगा कि जैसे वैज्ञानिक लोग बोलता है कि जड़ और चेतन ताদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, है ना? कभी कभी वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि पदार्थ तथा आत्मा एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः उच्च विचार की दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा में अंतर नहीं है। तो उच्चतर विचार में तो पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सब सच्चिदानंद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के धाम में रहता है, जो भगवान के नित्य पार्षद है, उन लोग का क्या जड़ शरीर रहता है, पंचभूत वाला शरीर रहता है? नहीं, पूरा ही चिन्मय है, आत्मा शरीर पूरा ही चिन्मय है। तो इसका मतलब पदार्थ और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ये तो पूरा उच्चतर विचार है, हाईएस्ट फिलोसफी। क्या अंदर जा रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये मायावादी इनफैक्ट मतलब गलत तो नहीं कह सकते वो लोग हैं? एकदम गलत है ना सेंटेंस पे के मतलब है ना। उन लोग बोलते हैं आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं आत्मा शरीर सब एक है, यही मरना है यही जीना है, जीना यहाँ मरना यहाँ। और उन लोग बोलते हैं कि भगवान माया में पड़ गया है, भगवान चिन्मय है, लेकिन यहाँ जब आकर मिट्टी खाता है, चोरी करता है, माखन चोरी करता है, तो भगवान भी माया में पड़ गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, भगवान चिन्मय है, यहाँ आने के बाद भी चिन्मय है। भगवान जब यहाँ लीला करता है क्या भगवान माया में आ जाता है? नहीं, वो लीला सब चिन्मय लीला है, भगवान का कार्यकलाप भी चिन्मय है, भगवान का शरीर भी चिन्मय है। नहीं, लेकिन अब उनका थ्योरी मैं बोल रही हूँ, जैसे मैटर एंड स्पिरिट are all same, are all same. They regard matter and spirit to be on the same platform. Okay, but deeply they, ये तो आप बोल रहे हैं कि दोनों ही शक्ति हैं। डीपली प्रभुपाद एक्स्ट्रा, एक्चुअली यहाँ देने से अभी लोग कंफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअली प्रभुपाद एक्स्ट्रा चीज बता रहे कि एक्चुअली ऊपर माने चिन्मय स्तर पे तो सब एक ही है, लेकिन जड़ जगतिक स्तर पे दोनों में अंतर है ना, आत्मा और शरीर में अंतर है ना। जड़ जगतिक स्तर में हम लोग जहाँ हैं अभी जड़ जगत में अंदर है ना। आत्मा का खाद्य क्या है? हरि कीर्तन। शरीर का खाद्य क्या है? शरीर का खाद्य ये सब हम लोग जो खाते हैं पंचभूत वाला आइटम्स खाते हैं। तो जड़ स्तर में व्यवहारिक स्तर पे तो दोनों में अंतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंदर गया जी प्रभु, समझ में आया। এই একটা সেন্টেন্স দিয়ে জিনিসটাকে একটু ভক্তরা কমপ্লিকেট পাচ্ছে, মানে জিনিসটা আরে बीच में कैसे ये आ गया। एनीवेज आगे 33 नंबर श्लोक। आत्मा लुकाइते प्रभु बोलिला ताहारे, आत्मा लुकाइते प्रभु बोलिला ताहारे, आगे কেন ইহা মাতা না শিখালে মোরে, আগে কেন ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে। নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, মা আগে কেন এই তত্ত্ব তুমি আমায় শেখাওনি। নিজের পরিচय, कारण कि वो तो साक्षात भगवान है, ये शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो माँ को लगेगा अरे बाबा ये इतना बड़ा पंडित हमारा बच्चा है, हमसे शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये सब छुपाने के लिए एक आम बच्चा जैसे बोलते मम्मी हमको क्यों आगे सिखाई ये सब बात। तात्पर्य জীবনের শুরু থেকেই যদি দ্বৈতবাদ সমন্বিত বৈষ্ণব দর্শন শেখানো হয়, তাহলে অদ্বৈতবাদ তাকে বিচলিত করতে পারে না। अद्वैतवाद माने सब एक है, आप भी भगवान हम भी भगवान, सब एक भगवान। तो जीवन का पहले से ही माता पिता को बच्चे लोगों को सिखा देना चाहते हैं चाहिए कि हम लोग सब भगवान नहीं है, हम लोग सब एक नहीं है, हम लोग सब भगवान बन जाएंगे। ये सब बोगस फिलॉसफी है। भगवान ये भगवान जो श्री कृष्ण है यही तुम्हारा पिता है। हम भी माता पिता को बोल देना चाहिए कि हम भी इन्हीं का संतान है, तुम भी उन्हीं का संतान। ऐसे सबको शिक्षा देना चाहिए। द्वैतवाद हम लोग अलग है, जीव अलग और भगवान अलग, ये द्वैतवाद है। अद्वैतवाद क्या है? जीव और भगवान एक है।
तो अद्वैतवाद ये गलत फिलोसफी है। अभी याद रखिएगा एक चीज, मैं ये आगे भी क्लास में बताया है, द्वैतवाद किन के एंगल से वो भी जानना जरूरी है। वैष्णव द्वैतवाद माने है कि जीव और भगवान अलग है, गुणात्मिक एक है लेकिन क्वांटिटेटिवली अलग है। यह है वैष्णव द्वैतवाद। मायावाद द्वैतवाद क्या है कि मायावाद अद्वैतवाद क्या है, जीव भगवान में कोई पार्थक्य नहीं है। हम लोग अभी जीव है लेकिन हम लोग का जो परिपूर्णता हो जाएगा, माने आवर सक्सेस विल बी गोइंग बैक टू गॉडेड एंड मर्जिंग विद सुप्रीम लॉर्ड। हम लोग भगवान के धाम वापस जाकर भगवानी बन जाएंगे। यह है मायावाद और द्वैतवाद। इसके लिए उन लोग क्या उदाहरण देता है, भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण देता है, ग्रीन पैरट गोइंग इन अ ट्री। एक अगर तोता है, सोचिए तोता है, ठीक है, और सोचिए ये वृक्ष है। ये तोता किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, और पेड़ किसका, पेड़ तो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। तो तोता अगर सोचिए पेड़ में चला गया तो उन लोग बोलता है, उन लोग का मत में है कि तोता पेड़ हो गया, क्योंकि ग्रीन में मैचिंग होगा, फिर दिखाई नहीं मिलेगा तोता कहाँ गया, तोता उसमें विलीन हो गया। लेकिन ये गलत है। प्रभुपाद जी क्या बता देते हैं, नहीं, तोता अगर पेड़ में घुस गया तो तोता उधर है, ऐसा नहीं कि तोता पेड़ बन गया। आप अगर अंदर से घुसेंगे देखेंगे तो देखिएगा तोता का अस्तित्व भी है। तो इसी तरह जीव हो सकता है कि भगवान के अंश है, लेकिन जब जीव भगवान के धाम चला जाता है तो जीव का अस्तित्व रहता है, ऐसा नहीं कि जीव भगवान बन जाता है। श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मायावाद लोग बोलता है ऑल रिवर्स मर्ज इनटू द ओशन। जितना भी नदियां है जाकर समुद्र में मिल जाता है या ना, मिल तो जाता है। तो इसका मतलब मायावाद लोग बोलता है जिस किसी को भी पूजा कीजिए भगवान का पूजा हो जाता है। तो ये गलत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ठीक है जितना नदियां जाकर मिल जाता है तो नदियां समुद्र में मिल जाता है तो एक ही बात है, नदी समुद्र में कोई फर्क नहीं। लेकिन सोचिए ये एक नदी है और नदी में एक दो मछली है। जब ये नदी सागर से मिल जाएगा तो मछली भी सागर में चला जाएगा, तो मछली क्या सागर बन जाएगा? नहीं, फर्क यही होगा, मछली अगर आगे नदी में था और अभी वो मछली सागर में है, लेकिन मछली मछली रहेगा, मछली कभी सागर नहीं बनेगा। इसी तरह जड़ जगत में जीव है, ठीक है, भजन कीर्तन करके अगर कोई भगवान के धाम चले भी गए, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जाकर भगवान बन जाएगा। यहां भी मछली है, यहां भी जीव है, वहां भी भजन कीर्तन करेगा, वहां भी जीव ही रहेगा। ये दो उदाहरण श्रील प्रभुपाद इस आत्मा रूपे हाँ ना, ওখানে शरीर হবে किंतु चिन्मय शरीर, वहां भी जीव का शरीर है। ऐसा नहीं कि वहां भी एक डॉट बन के रहेगा भगवान के धाम में, नहीं, सब भगवान की जो नित्य पार्षद है जो भगवान के धाम में, सबका शरीर है ना, हाँ सबका शरीर, मधुमंगल का शरीर है ना, है, लेकिन पूरा शरीर चिन्मय शरीर है, कोई पंचभूत वाला शरीर नहीं है। ज्यादा ही फिलोसफी हो गया। हरे कृष्ण, सब बोल रहे सुबह सुबह भेजा तो फ्राई हो गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थोड़ा ये खत्म करने से अच्छा होता है, बीच में लीला छोड़ने से ना कल फिर अच्छा। तो নিমাই মাকে বল रहे নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য মহাপ্রভু তাকে বললেন, মা আগে কেন এই তত্ত্ব তুমি আমাকে শেখাওনি? জীবনের শুরু থেকেই যদি দ্বৈতবাদ সমন্বিত বৈষ্ণব দর্শন শেখানো হয় তাহলে অদ্বৈতবাদ তাকে বিচলিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই পরম উৎস। জন্মাদয়স্য অনবদ্যতরত, হরে কৃষ্ণ, থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মূল শক্তি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক যেমন সূর্যের মূল শক্তি সূর্য কিরণ, আলোক ও তাপের বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। যদিও আলোক ও তাপকে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তবুও কেউ বলতে পারে না
তাপ হচ্ছে আলোক অথবা আলোক হচ্ছে তাপ। समझ में आया? समझ में आया ये उदाहरण? बोलने से और फिलोसफी और दिमाग बीजा फ्राई होगा। हाँ प्रभु ठीक है। सूर्य दो चीज देता है, रोशनी भी देता है और उष्णता भी देता है, हाँ या ना? दोनों देता है। हाँ, लेकिन दोनों एक साथ आता है? दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं, दोनों एक साथ आता है। लेकिन हम लोग दोनों एक साथ आता है तो क्या है? हम लोग बोल सकते हैं कि ताप और रोशनी दोनों एक है? नहीं, नहीं बोल सकते। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন হচ্ছে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, অর্থাৎ অচিন্ত भेद ও अभेद तत्व। इसीलिए दोनों एक भी है, रोशनी और उष्णता दोनों एक भी है, लेकिन दोनों अलग भी है। तो जीव और भगवान एक भी है और जीव और भगवान अलग भी है। एक कैसे है? गुणात्मक एक है, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। तो भगवान का जो गुण है, भगवान के अंश जीव होने के नाते उनमें भी वो सब गुण है। लेकिन जैसे भगवान का गुण कुछ गुण बोली, भगवान सुंदर है, जीव भी सुंदर है, किसी कुछ विचार में तो सुंदर है जीव। भगवान करुणामयी है, जीव भी करुणामयी है कुछ, लेकिन सीमित। हम लोग करुणा भी प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कठोर हृदय है। हम लोग भी कुछ जगह में करुणा प्रदर्शन किया है ना, इस्कॉन में आने का भी किया है ना। तो ऑल द क्वालिटीज प्रेजेंट इन लॉर्ड आर प्रेजेंट इन material জীবন also। তাপ ও আলোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেমনি যদিও সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের শক্তি, তবুও সেই শক্তি विविध वैचित्र নিয়ে प्रकाशित হয়েছে। तो हम लोग तटस्थ शक्ति है, हम लोग का तटस्थ शक्ति होने के बावजूद हम लोग का उत्स कौन है? सोर्स कौन है? कृष्ण। लेकिन कृष्ण और तटस्थ शक्ति एक है क्या? नहीं। लेकिन कोई बोल सकता है अरे कृष्ण तो चिन्मय है, तो ठीक है, लेकिन उन्हीं से तो निकला तो क्या हुआ? हम लोग में तटस्थ शक्ति, हम लोग को जीव तटस्थ शक्ति हो जाए, चिन्मय नहीं। आत्मा चिन्मय है, लेकिन जीव जब वही चिन्मय आत्मा जब जड़ जगत में आता है तो भौतिक आवरण ग्रहण करता है और तटस्थ शक्ति बन जाता है। एबे से जानिलाई आर माटी ना खाइबो, এবে সে জানিলাম আর মাটি না খাইব, ক্ষুধা লাগে যবে তবে তোমার স্তন পিব, ক্ষুধা লাগে যবে তবে তোমার স্তন পিব। এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া, এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া, স্তন পান করে প্রভু ঈশত হাসিয়া, স্তনপান করে প্রভু ঈশত হাসিয়া। এই মতে নানা ছলে ঐশ্বর্য দেখায়, এই মতে নানা চলে ঐশ্বর্য দেখায়, ভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়, বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়। তো এখানে এখন আমি যখন এই তত্ত্ব বুঝতে পেরেছি, তখন আমি আর মাটি খাবো না। যখনই আমার খিদে পাবে তখন আমি তোমার স্তন পান করব। সেই কথা বলে মহাপ্রভু তার মায়ের কোলে চড়ে ঈষৎ হেসে তার স্তন পান করতে লাগলেন। এভাবেই নানা ছলে শ্রী ভগবান বাল্যলীলা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার পর তিনি তার স্বरूप लुकिয়েছিলেন। तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु को मालूम नहीं था ये तत्व, सब मालूम है, लेकिन उनका माँ के मुंह से ये सब निकाला। ऐसा नहीं जो महाप्रभु का नाम का महिमा मालूम नहीं, इसीलिए हरिदास ठाकुर ने बोला उनको नहीं, लेकिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर के मुंह से बुलवाया ये सब, उनको ख्याति दिया। ऐसा नहीं कि रामानंद राय जो बोला महाप्रभु को मालूम नहीं था, लेकिन सब कुछ मालूम था, लेकिन रामानंद राय के मुंह से बोला है। रामानंद राय ये भी बोला है बार बार कि प्रभु আমি যা আপনি আপনার আপনার বাণী কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, रामानंद राय ऐसे बोला है। फिर श्रीवास के खुला बेचा श्रीवास ने भी हम लोग देखा है ना कि महाप्रभु बोला श्रीवास मेरा स्तुति करो, तो खुला बेचा श्रीधर बोल रहा, श्रीवास ने श्रीधर बोल रहा है प्रभु मैं अनपढ़ गवार, मैं क्या आपका स्तुति करूं? नहीं करो करो। तो उस समय क्या होता है, सरस्वती देवी श्रीधर का मुंह में विराज करता है और उसके कारण श्रीधर भगवान का स्तुति करना शुरू करता है। ये सब हम लोग देखा है ना। तो भगवान की कृपा से यद कृपा तमहम वंदे श्री गुरु तीनता मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयति गिरिम। भगवान अगर कृपा करेगा तो कुछ भी कोई भी बोल सकता है।
तो इसलिए सची माता देखिए इधर तक को धार बोल दे रहा है ऐसे करके। ओके, तो हम लोग का आज ये यही मत नामा छोले देखा था 36 तक हुआ है। कल हम लोग का क्लास का प्रारंभ में हम लोग सुचारू गोपी माता जी और महामंजरी माता जी का पहले ड्रामा देखेंगे इस लीला के ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, বদন বলিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल কবিরাজ গোস্বামী हरि बोल जय जय जय।